Hello everyone, welcome back in Python's class. I am Ashish Goel and let's continue with operations on data structures. All right, what operations we are having in data structures? In data structures, one, insertion. Insertion means addition of new data element in a data structure. Deletion. Deletion means removal of a data element from a data structure. The data element is search for before इट्स रिमूवल। ठीक है, तो कुछ भी डेटा आइटम अगर डिलीट करना है तो फॉर दैट वी नीड टू फर्स्ट सर्च इट। तो पहले ढूंढेंगे, मिलेगा तब उसे हम डिलीट करेंगे। इट्स लाइक दैट। सर्चिंग सर्चिंग इज सिंपली is like if something is to be searched, like specified data element to be searched within the data structures, so then searching is used. Traversal. Traversal of a data structure means processing all the data elements of it one by one. Storing, arranging data elements of a arranging data elements of a data structure in a specified order is called sorting. Merging, combining elements of two similar data structures to form a new data structure of same type is called merging. Now, let's talk about the linear list first. A linear data structure is that whose element forms a sequence when elements of linear data structures are homogeneous and are represented in a memory by means of sequential memory location. These linear structures are called arrays. Linear lists or arrays are one of the simplest data structures and are very easy to traverse, search, sort, etc. The number n is called the size or length or range of an linear list when upper bound and lower bound of the linear list are given. Its size calculated as below, like size length equals to ub. Ub means upper bound minus lb lower bound plus 1. ठीक है, तो upper bound minus lower bound plus 1. Okay, this is how we can calculate the size or length of the linear list. Different searching algorithms we have in case of linear searching or like linear list. So searching in linear list, we can go for two, like linear search and binary search. Linear search. In linear search, each element of the array or the linear list is compared with the given item to be searched for one by one. This method, which traverses the array or linear list sequentially to create the given item, is called linear search or sequential search. Okay, this is the algorithm how we can search a particular element in a linear list using the linear search method. Okay, set ctr equals to l. Now search for the item. Repeat step 3 through 4 until ctr is greater than u. Right? If AR CTR is not equals to item, then print, sorry, is equals to item. Okay, if AR CTR is equals to item, तो जो हम सर्च कर रहे हैं अगर वो हमें AR में मिल गया है, then print search successful CTR location of item, right, and break इस तरीके से। and otherwise क्या कर रहे हैं, CTR equals to CTR plus 1. If CTR is greater than U, ठीक है, then print search unsuccessful.
ठीक है, यूज द अपर बाउंड हियर, राइट। तो अगर CTR यहाँ पे ग्रेटर देन यू हो जाता है, इसका मतलब हमें कोई भी वैल्यू जो हम सर्च करना चाह रहे थे वो हमारे एरे या लिस्ट में मैच नहीं हुई कहीं पर भी, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा CTR इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू यू करने ग्रेटर देन यू करने पर सर्च अनसक्सेसफुल और हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो या तो हमें सर्च मिल गया लोकेशन जहाँ पर जिसको हम ढूंढ रहे हैं वो वैल्यू आपके लिस्ट में, अदरवाइज ये नहीं मिला, तो इन दो केस में हमारा जो प्रोग्राम है वो एंड हो जाएगा। लेट्स चेक आउट द एग्जांपल। ओके, हियर्स द एग्जांपल। लाइक हमने क्या किया है, एक एल सर्च नाम से मेथड बनाया हुआ है। इस फंक्शन या मेथड में हम पास करा रहे हैं AR जो कि एक लिस्ट है और एक आइटम जिसको सर्च करना है। ठीक है, देन वी हैव आई जिसको भी जीरो इनिशियलाइज किया हुआ है, तो CTR या आई कुछ भी आप वेरिएबल ले सकते हो, सॉल्व योर चॉइस। ठीक है, एंड आई को हम यहाँ पे लेके जा रहे हैं अपर बाउंड तक, तो लेस देन हमने लिया है लेन AR। ठीक है, एंड ARI इज नॉट इक्वल्स टू आइटम, और जब तक हमारा AR ऑफ आई आइटम के बराबर नहीं हो जाता तब तक हम ये काम करेंगे, आई को आई प्लस 1 करते जाएंगे। ठीक है, और अगर ये मैच कर जाएगा तो हम बाहर आ जाएंगे। अभी यहाँ चेक करेंगे इफ आई इज ग्रेटर देन, मतलब लूप के बाहर आकर चेक करेंगे इफ आई इज स्टिल लेस देन लेन AR, देन रिटर्न आई। ठीक है, और अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। ऑलराइट, मेन में हमने क्या किया है, जो टॉप लेवल स्टेटमेंट्स है वहां पर हमने इनपुट कराया है एक नंबर जो कि है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि साइज ऑफ द एलिमेंट, और यू कैन से द एरे। ठीक है, एक AR, एक हमने यहाँ पे लिस्ट इनिशियलाइज किया विद 0, तो 0 into n इस तरीके से आप करेंगे तो आपको यहाँ पर ये एक लिस्ट बन जाएगी जीरोस की। ठीक है, n नंबर ऑफ जीरोस की। फाइन, इसके बाद हम यहाँ पे कर रहे हैं एंटर एंटर एलिमेंट्स फॉर लीनियर लिस्ट। तो लीनियर लिस्ट में हम यहाँ पर एलिमेंट्स एंटर करवा रहे हैं। ठीक है, यूजिंग द फॉर लूप, तो फॉर रेंज एन, तो 0 to n यहाँ जाएगा, अप टू n, तो n इंक्लूडेड नहीं होता, एक्सक्लूडेड होता है। ठीक है, तो लाइक अगर n 5 है तो 0 to 4 चलेगा, एंड 10 है तो 0 to 9, इस तरीके से, और एक एक करके वैल्यूज हमारे पास यहाँ पर रीड हो जाएंगी। ओके, इसके बाद हमने वो आइटम एंटर करा लिया, वो वैल्यू जिसको हम सर्च करना चाहते हैं एरे में से, एंड देन वी कॉल द एल सर्च मेथड। ठीक है, जिसमें हमने AR जो एरे है वो पास किया और आइटम को पास किया। ठीक है, एंड देन इट विल गोइंग टू रिटर्न यू फॉल्स और आई। तो इफ आई जो भी वैल्यू आएगी अगर, तो यहाँ पर आ जाएगा, और अगर फॉल्स आया तो सॉरी गिवन एलिमेंट कुड नॉट बी फाउंड। ऑलराइट, लेट्स चेक इट आउट। So enter desired list size, हमने कहा 5, एलिमेंट्स डाले 10, 20, 30, 40, 50, and then the element to search, let's say 20. ठीक है, तो element found at index 1 and position 2, this would be the output.
ऑलराइट, so let's move on. Now binary search. Now how binary search will work? Okay, this popular search technique searches the given item in minimum possible comparisons. सबसे पहली चीज important है. The binary search requires the array to be scanned must be sorted in any order, like in ascending or descending. Okay. In binary search, the item is searched for in small segment nearly half the previous segment after every stage. ठीक है, तो जैसे जैसे सर्च आगे प्रोग्रेस करेगी तो जो अभी तक आपके पास में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिसमें आप सर्च कर रहे थे तो उसे हम एक सेगमेंट कह रहे हैं। तो जो एलिमेंट के बीच आप सर्च कर रहे थे नेक्स्ट स्टेज में उसका हाफ रह जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट सर्च करने के लिए। तो फॉर द फर्स्ट स्टेज द सेगमेंट कंटेन्स द एंटायर अरे एंड देन इट रिड्यूस टू इट्स हाफ। ठीक है, in every stage is reduced to its half. To search for item in a sorted array in ascending order, the item is compared with middle element of the segment in the entire array for the first time. If the item is more than the middle element, later part of the segment become new segment to be searched. ठीक है, तो अगर जो आइटम है वो मिडिल एलिमेंट से बड़ा है तो जो लेटर पार्ट है मिडिल एलिमेंट के बाद वाला जो पार्ट है वो एक्चुअली आप सर्च के लिए यूज होगा फर्दर, राइट। और अगर आइटम लेस देन मिडिल एलिमेंट है, लेस देन ऑफ मिडिल एलिमेंट आइटम है तो उस केस में जो अब नेक्स्ट सर्च होगा वो होगा जो करंट सेगमेंट है उसके फॉर्मर फॉर्मर पार्ट में, मतलब मिडिल एलिमेंट के फॉर्मर पार्ट में। ठीक है, यानी कि जो न्यू सेगमेंट है वो हो जाएगा मिडिल एलिमेंट से पहले वाला बस, राइट। तो इस तरीके से सर्च हमेशा हाफ होती जाएगी जब तक एलिमेंट मिल नहीं जाता या फिर हम लास्ट एलिमेंट पर सिंगल एलिमेंट पर नहीं पहुंचाते। द सेम प्रोसेस इज रिपीटेड फॉर द न्यू सेगमेंट्स until either the item is found or the segment is reduced to the single element and still the item is not found. Okay, let's see how is the algorithm. तो हमने यहाँ पर लिया है beginning, एक बीजी एक लास्ट, बिगिन एंड लास्ट ये हमने लिया फर्स्ट और लास्ट एक तरीके से जो हमारे इंडेक्सेस हैं। तो एल लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों यहाँ पर हमने सेट कर दिए। इसके बाद while बीजी इज लेस देन इक्वल्स टू लास्ट, ठीक है, परफॉर्म स्टेप्स 3 to 6। ठीक, क्या है 3 मिड, ठीक है, इसको हमने कैलकुलेट किया कैसे, बीजी प्लस लास्ट बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, मिडिल इंडेक्स मिल जाएगा। बेसिकली चेक किया कि क्या मिडिल इंडेक्स, क्या हमारा मिडिल इंडेक्स आइटम या एलिमेंट हमारे आइटम जो कि सर्च करना चाहते हैं उसके बराबर है। इफ यस देन प्रिंट सर्च सक्सेसफुल एंड ब्रेक। ऑलराइट, ओके देन द फिफ्थ स्टेप वी आर चेकिंग कि अगर ये मैच नहीं करता है इन केस, ठीक है, अगर मिडिल इंडेक्स आइटम अभी एलिमेंट अभी आइटम के बराबर नहीं है तो फिर हम चेक करेंगे कि क्या हमारा जो मिडिल इंडेक्स आइटम एलिमेंट है वो आइटम से छोटा है। अगर छोटा है तो उस केस में बिगिन हो जाएगा मिडिल प्लस 1। ठीक है, यानी कि अब जो हमें ढूंढना है वो मिडिल के आगे वाले पोर्शन में ढूंढना है। और अगर ये भी फॉल्स हो जाता है तो हम चेक करेंगे कि क्या मिडिल इंडेक्स एलिमेंट
बड़ा है आइटम से, और अगर बड़ा है तो पीछे मिलेगा मिडिल इंडेक्स से पहले पहले, तो दैट मीन्स कि यहाँ पर आपका जो लास्ट है वो मिडिल इंडेक्स -1 हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा हम यहाँ पर करते रहेंगे तब तक जब तक कि हमें एलिमेंट नहीं मिल जाता, या फिर हम एक सिंगल एलिमेंट तक नहीं पहुंच जाते। राइट, सिंगल एलिमेंट तक पहुंचेंगे लूप से बाहर आ जाएंगे, या फिर एलिमेंट मिल जाएगा यहाँ तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे। एंड ऑफ व्हाइल लूप, देन वी चेक कि क्या बिगिन लास्ट से बड़ा है। अगर बिगिन लास्ट से बड़ा है देन अनसक्सेसफुल सर्च, अदरवाइज सक्सेसफुल यहाँ पर हो ही चुकी होगी। लाइक दैट, that is how we can implement the binary search algorithm for ascending order list. Yes, okay. And अगर descending में करना हो तो क्या change करेंगे, तो we just discuss was one of the cases of binary search if it will be implemented only when the array or list is in ascending order. Case 2, when array is sorted in descending order. राइट, इनिशियलाइज करेंगे, देन हम यहाँ चेक करेंगे जो आइटम इंडेक्स है वो मैच कर रहा है आइटम से या नहीं। ठीक है, फिर यहाँ पर ए आर मिड इज लेस देन आइटम। ठीक है, तो लास्ट इक्वल्स टू मिड -1, और अगर ए आर मिड इज ग्रेटर देन द आइटम देन बिगिन मिड इक्वल्स टू बिगिन इक्वल्स टू मिड +1। ओके, तो यहाँ पर जो कंडीशंस हैं वो थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। दैट्स इट। राइट, देन लेट्स चेक आउट द एग्जांपल, बाकी सारा कुछ सेम ही रहेगा। लेट्स चेक आउट द एग्जांपल विद ascending order list, how to search ascending order list। Okay, so here we have a method b search as like in line linear search we have L search, we have now b search। array item begin equals to 0, last equals to, यहाँ पे ले लिया। ठीक है, लेंथ -1, एंड यहाँ चेक किया है जब तक बिगिन लेस देन इक्वल्स टू लास्ट रहे, मिड इक्वल्स टू बिगिन प्लस लास्ट बाय 2। ठीक है, और चेक किया है कि क्या आइटम मिडिल इंडेक्स आइटम के बराबर है, अगर है देन रिटर्न मिड, और अगर नहीं है तो फिर चेक किया कि क्या आइटम बड़ा है, ठीक है, या फिर आइटम छोटा है। अगर आइटम बड़ा है तो बिगिन इक्वल्स टू मिडिल +1, और अगर आइटम छोटा होगा तो लास्ट इक्वल्स टू मिडिल -1। ठीक, और अगर ये मैच नहीं करता है, कंडीशन फॉल्स होती है, तो हमने व्हाइल का एल्स लगाया है। ठीक है, और यहाँ पे रिटर्न फॉल्स कराया व्हेन आइटम वाज नॉट फाउंड। ठीक है, तो ये फॉल्स का वो रिटर्न होगा जब आइटम फाउंड नहीं करेगा। ठीक है, वही सेम पहले वाला प्रोसेस, हमने यहाँ पे पूछा कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ काम करना है, उतने एलिमेंट्स मतलब 0 मल्टीप्लाई एन करके उतने नंबर ऑफ जीरोस का एक एरे बना लिया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम एरे एलिमेंट्स इनपुट करा रहे हैं। ठीक है, आइटम, ठीक है, ये हमने रीड करा लिया जिसको हम सर्च करना चाहते हैं, और फिर पास कर दिया यहाँ पर फंक्शन में बी सर्च में ए आर, एरे बना था आइटम लिस्ट और आइटम, एंड देन यहाँ पर जो रिटर्न होकर आया इंडेक्स में वो हम यहाँ यूज कर रहे हैं, या तो मिडिल इंडेक्स रिटर्न होकर आया होगा जहाँ से हमें पता लगेगा कि ये इस इंडेक्स पे हमें नंबर मिल गया और इसकी पोजीशन है। ठीक है, और अदरवाइज आएगा फॉल्स, जिस केस में हम बता देंगे सॉरी गिवन एलिमेंट इज नॉट फाउंड इन द एरे। राइट, और लाइक दिस। ठीक है, अभी हमने यहाँ दिया फिर से जैसे 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100। हमें सर्च करना है 70 सर्च। राइट, लाइक दिस। Okay, thank you very much.